اللہ کرے جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہو جائے، میری تلاش واقعی ختم ہو جائے۔ وہ پلٹے بنا ہی بولا تھا کہ اس کے لفظوں پر عائشہ بیگم اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ شہریان تو چلا گیا تھا لیکن وہ وہیں ماضی کی یادوں میں کھو گئیں۔ السلام علیکم مسز عائشہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ عائشہ بیگم بمشکل مسکرائی تھی۔ زحل کے جانے کے بعد شاہ ہاؤس میں ہنسنا یا مسکرانا یعنی شہریان شاہ سے دشمنی پال لینا تھا۔ فائن، بٹ مسز عائشہ آپ کی بہو آج بھی چیک اپ کے لیے نہیں آئیں؟ لاسٹ ویک کے بعد ان سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ ایسی سچویشن میں یہ لاپرواہی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میں سمجھی نہیں۔ زحل کو کیا ہوا آپ کو نہیں پتا؟ مسز زحل ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر عائشہ بیگم کے ہاتھ سے فون گرا تھا جس پر سامنے سے سیڑھیاں اترتے شہریان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا تھا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ ان کی غیر ہوتی حالت پر شہریان نے تشویشی انداز میں ان سے پوچھا۔ وہ زحل کا کچھ معلوم ہوا کہ کہاں ہے؟ وہ آ جائے گی جلدی، اتنا کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ عائشہ بیگم وہیں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا زحل، میرے بچے کو اتنی بڑی سزا دی کہ اس کے اپنے بچے سے اسے دور کر دیا۔ تم کیوں گئی ہو میں نہیں جانتی، لیکن جس دن شہریان کو اپنی اولاد کا معلوم ہوا وہ دنیا ایک کر دے گا تمہیں اور اپنے بچے کو ڈھونڈنے میں، لیکن تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیا ہوا بچے، پریشان ہو؟ بی اماں کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن وہ کبھی شہریان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے بیٹے کے لیے زحل کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہ چپ ہے تو کوئی وجہ ہے۔ وہ اسے زحل اور اس کے بچے کے بارے میں بتا کر مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ منسا بچا لو مجھے، میرے بچے کو، میں نہیں مرنا چاہتی، پلیز منسا۔ شہریان ہمارا بچہ۔ ایک جھٹکے سے وہ نیند سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا تھا۔ میں نہیں بچا سکی تمہیں اور ان سب کا ذمہ دار صرف تمہارا باپ ہے، اس کا مافیا ورلڈ ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں کی باڑ سے آزاد ہوا تھا اور اسے وہ رات یاد آئی جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایئرپورٹ کی طرف بڑھی تھی۔ سنسان سڑک پر چلتے چلتے اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی گن بیگ سے نکالی تھی۔ اس کی رفتار میں تیزی آئی تھی۔ ایئرپورٹ کچھ ہی فاصلے پر تھا جب اچانک کسی نے اس کے بیک پر فائر کیا۔ ایک سسکی کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا۔ یہ تو گئی شہریان شاہ کی بلبل اپنے باپ اور سسر کے پاس۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری الفاظ تھے وہ یہی تھے جو اس نے سنے، مگر اسے تکلیف ان لفظوں پر نہیں بلکہ اس آواز سے ہوئی تھی جس کو وہ بہت بار سن چکی تھی۔ بیچاری اپنے شوہر کے مافیا ورلڈ کی خاطر ماری گئی اور ساتھ شہریان شاہ کی گندی اولاد بھی۔ یہ کہہ کر مقابل نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ کوئی وجہ تو چھوڑ دیتے شہریان شاہ خود سے نفرت نہ کرنے کی۔ اور اس کے بعد وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے ساتھ کھڑی نرس سے پوچھا۔ مسز آپ کو کوئی اجنبی یہاں لائے تھے، کوئی بزرگ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ایئرپورٹ کے پاس خون آلود پڑی تھی، بہت بری حالت تھی آپ۔ کوئی پولیس والے تھے اس لیے خفیہ طور پر آپ کو لے آئی۔ نرس نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ میرا بچہ؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اور پھر سے زحل شاہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک جھٹکے سے وہ حال میں لوٹی تھی۔ کتنی بار کہا تھا تمہیں کہ چھوڑ دو یہ مافیا ورلڈ؟ پھر سے اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی نا؟ کسی کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں احمد روم کے دروازے پر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کب آئے؟ اس نے فوراً سے پہلے اپنا ڈریس ٹھیک کیا۔ جب تم کسی کی یادوں میں گم تھی۔ میں تو کسی کی یادوں میں گم نہیں تھی، البتہ تم اسے بھول نہیں پائے۔ وہ مسکرا کر کہتی بالوں کو باندھتے ہوئے اٹھی۔ میں بھی بھول گیا ہوں، بس ڈرتا ہوں تمہاری ڈیورس نہیں ہوئی نا ابھی تک؟ اس کی معصومیت سے کہنے پر زحل 2 قدم اس کے قریب آئی۔ ڈونٹ وری ہنی، میں تمہارے ساتھ ہوں، کہیں نہیں جا رہی۔ اب تم نیچے جاؤ، میں چینج کر کے آئی، ویسے بھی آج میرے لیے بڑا دن ہے۔ شرارت سے آنکھ دبا کر کہتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کینیڈا کی زمین پر قدم رکھتے ہی اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ اپنا بچپن اور پھر زندگی کے وہ 6 سال اس کے سامنے کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ سر چلیں؟ کچھ گارڈز اس کے آگے پیچھے کھڑے بولے تھے۔ سر کو خم دے کر اس نے چلنا شروع کیا۔ ابھی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تھے جب کوئی چھوٹا سا بچہ اس کے آگے رکا۔ موم، شہریان شاہ۔ اس انجان بچے کے منہ سے اپنا نام سن کر اس نے گلاسز اتارے۔
हैरत उसे अपना नाम सुनकर नहीं बल्कि उस गेट पर अब भी मौजूद उसे खुद को पहचानने पर हुई थी। बेटा उधर आ जाओ, वो माफिया के लोग हैं। उस बच्चे की माँ ने इंग्लिश में कहकर बच्चे को अपनी तरफ किया। बट मैं इनका फैन हूँ, इस बच्चे को बुलाओ। उसने एक गार्ड को इशारा किया। बट सर, गार्ड जो कुछ बोलने वाला था उसकी घुरी पर बच्चे की तरफ बढ़ गया। छोड़ो मेरे बच्चे को, सर बुला रहे हैं, जाने दो वरना हमेशा के लिए औलाद से जाओगी। अगले ही लम्हे वो बच्चा शहरियार के सामने था। उसके आते ही वो घुटनों के बल बैठा और अपने गले में मौजूद एक चेन उसने उतार कर बच्चे को पहनाई, जिससे वो खुशी से चहक कर उसके गले लगा था। उसकी इस हरकत से गार्ड समेत बहुत से लोग हैरान हुए थे। बहुत से कैमरों ने उस लम्हे को कैद किया था। सर, हम लेट हो रहे हैं, सीनियर गार्ड ने उसके कान में कहा, जिस पर वो उस बच्चे के गालों पर हाथ फेर कर आगे बढ़ गया था। क्या देख रही हो? गाड़ी में बैठते ही अहमद ने उससे पूछा, जो बहुत देर से मोबाइल को घूर रही थी। कुछ नहीं, उसने जल्दी से शहरियान और उस बच्चे की तस्वीर को हटाया स्क्रीन से। तुम रेडी हो ना? मुझसे वादा करो कि कमज़ोर नहीं पड़ोगी। डोंट, मैं अब पहले वाली जोहल नहीं रही हूँ, लॉयंस क्वीन बन गई हूँ। वेलकम बैक मिस्टर शहरियार। इस बार तुम्हारा सामना जोल से नहीं बल्कि लॉयंस क्वीन से होगा, एक अज़्म से कहकर उसने एक नज़र खुद को साइड मिरर में देखा। वो वाकई पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। शाम के तकरीबन 8 बजे वो ब्लैक 3 पीस सूट में तैयार सा खड़ा अपने गार्ड्स के हमरा उस बड़ी सी बिल्डिंग में दाखिल हुआ। सबसे मिलने के बाद वो सबसे आगे रखे सोफे पर जा बैठा। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब जानते हैं कि हमारी कंपनी ने बहुत ही कम अरसे में डबल तरक्की की है। यही वजह है कि आप पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन हमारे पार्टनर हैं। अब मैं अपने लॉयंस वर्ड्स के ऑनर को यहाँ आज दावत देना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहते हुए वो साइट पर हुआ था जब पूरे हॉल की लाइट ऑफ हुई और फिर लाइट स्टेज पर घूमते हुए किसी चीज़ पर जा रुकी। क्या है ये इतना बड़ा ड्रामा? बिजनेस पार्टी है क्या ये? उसने उकताकर अपने साथ बैठे शख्स से कहा जब स्टेज से आती आवाज़ पर उसने चौंक कर स्टेज की तरफ देखा था। हाय एवरीवन। उसकी पुरजोश आवाज़ पर सभी मुस्कुराए थे सिवाय एक इंसान के, जो किसी बुत की तरह स्पाट चेहरा लिए उसे देख रहा था। यह आवाज़ तो उसकी जोहल की थी, मगर जो सामने थी वो जोहल से बहुत मुख्तलिफ थी। ब्लैक फिट मैक्सी, जिसका पीछे का गला खासा गहरा था, गर्दन तक आते गोल्डन ब्राउन बाल जो उसने खुले छोड़कर बोल्ड मेकअप पर न्यूड लिपस्टिक लगाए, वो उस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। हॉल के साथ साथ शहरियार की जिंदगी में भी रोशनी बढ़ने लगी थी। उसकी स्पीच कब खत्म हुई और वो कब उसके सामने आई थी उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। हेलो मिस्टर शाह, वो उसके सामने हाथ फैलाई खड़ी थी। हेलो मिसेस जोहल। होश में लौटते उसने आम से अंदाज में उसका हाथ थामा था। इतनी हैरत में होने के बावजूद भी उसके तासुरात से जोहल शाह को वो कहीं से हैरान नहीं लगा था। यू मिसेस जोहल, मेरा नाम एल क्यू है, फुल फॉर्म लॉयंस क्वीन। जिस अंदाज में उसने कहा था, शहरियार के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। बाजीगर को खेल सिखा रही हैं आप मिसेस जोहल? वो कुछ कदम करीब हुआ। मुझे लगता है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, उससे एक्सक्यूज करती वो आगे बढ़ी जब हॉल की लाइट्स एक बार फिर डिम हुई और शहरियार ने उसे खुद से करीब किया, जिससे उसकी बैक शहरियार के सीने से लगी। मुझे लगता है शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं मिसेस शहरियार शाह। हज़ारों लोगों के बीच में इस खुशबू को पहचान सकता है शहरियार शाह। शायद आप सच कह रहे होंगे मिस्टर शहरियार, लेकिन मैं अब वो जोहल नहीं रही, सो स्टे अवे। ताइज से कहती वो एक झटके से उसकी गिरफ्त से निकली। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, कोई उन दोनों के बीच में आया था। क्या हुआ लाइनस, एनी प्रॉब्लम? अहमद चेहरे पर मास्क चढ़ाए उसके पास आया। नो, सब ठीक है। डांस? वो उसके सामने ही अहमद के बाजू में हाथ डाले चली गई थी, जबकि वो पीछे वेटर से ड्रिंक लेकर उसे देखने लगा। बुलबुल शेरनी बन गई है, और अब के जख्मी शेरनी नहीं, भूखी शेरनी। लेकिन तुम भूल गई हो जोहल शाह, शहरियार शाह सब कुछ माफ़ कर सकता है, लेकिन तुम्हारा किसी और की कुर्बत में रहना हरगिज़ नहीं। और उसके हाथ में मौजूद ग्लास उसकी गिरफ्त में चकनाचूर हुआ था। हॉल में सभी एक दूसरे में मगन थे। सिर्फ शहरियार शाह था जिसकी नज़र सामने किसी के साथ डांस करती उस हसीना पर थी जो उसकी कुल कायनात थी। सर, आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे वो लड़की 2 मिनट के अंदर अंदर इस लड़के से दूर चाहिए, उसने ऑर्डर दिया। सर, आप किसका कह रहे हैं? गार्ड ने हैरत से उसे देखा। लॉयनेस किंग, 2 मिनट से पहले पहले उस लड़के से दूर चाहिए, वरना मैं यहाँ तबाहियाँ फेर दूंगा। मुझे तुम्हारी। उसके अंदर एक चिंगारी सी उठी थी जब उस लड़के ने जोहल की पुष्ट पर हाथ रखा था।
बट सर वो, इससे पहले कि गार्ड अपनी बात मुकम्मल करता एक लड़की उनके दरमियान आई। हे हैंडसम, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम्हारा तो खून निकल रहा है। जबकि उसके कहने पर शहरियार ने एक नज़र सामने डांस करती जोहल पर डाली और दूसरी अपने गार्ड्स पर, जो हैरान परेशान खड़ा था। और अगले ही लम्हे वो हाथ पर टिश्यू लपेट कर उस लड़की के आगे हाथ फैला गया, जिस पर वो एक इशारा समझती अपना हाथ उसकी हथेली पर रख के डांस फ्लोर पर चली गई। कीप डिस्टेंस। अहमद ने जैसे उसे करीब किया था वो उससे 2 कदम दूर हुई थी। क्यों? शोहर की मौजूदगी में डर लग रहा है? अभी से हार मान गई तुम? व्हाट नॉनसेंस, मुझे क्यों डर लगेगा? जोहल ने आईब्रो उचकाए थे। लगना भी नहीं चाहिए, ज़रा एक नज़र उसे देखो, कितना बेखौफ होकर लड़की के साथ चिपक रहा है। उसके कहने पर जोहल ने दूसरी तरफ देखा, जहाँ वो किसी लड़की के साथ डांस करने में मगन था। और यहाँ जोहल शाह का पारा हाई हुआ था। इससे पहले कि वो पलट कर अहमद के करीब होती, लाइट ऑफ होकर डिस्को लाइट्स ऑन हुई, और जब वो पलटी थी उसका हाथ अहमद की जगह किसी और ने थाम कर उसे अपने करीब किया। ये क्या बदतमीजी है? जैसे ही शहरियार ने उसे खींचकर उसकी पुश्त पर हाथ रखा, वो एक झटके से पीछे होते बोली, डांस पार्टनर्स तो चेंज होते ही रहते हैं। वो देखें, आपका पार्टनर भी लाइनस। इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है मिसेज? अब किसी और के साथ इंजॉय कर रहा है वो। उसने अहमद की तरफ इशारा किया, जो अब वाकई किसी और के साथ डांस इंजॉय कर रहा था। आपके हाथ से खून निकल रहा है मिस्टर शाह, मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा। ओह ऐसा क्या? अब खराब नहीं होगा ड्रेस। ये कहते ही उसने अपना खून आलूद हाथ जोहल की पुश्त पर रखा, जहां उसका पीछे का गला गहरा था। हाउ डेयर यू! उसकी हरकत पर वो बुरी तरह से उस पर झपटती उसका कॉलर थाम चुकी थी। नो 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 बेबी गर्ल, सब क्या सोचेंगे? शहरियार ने एक बार फिर उसे घुमाकर उसकी पुश्त खुद से लगाई, जबकि वो उसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हटो। मार देना, पहले मुझे मेरे सवालात के जवाबात दो। जोहल के लाख मज़ाहमत के बावजूद भी उसकी गिरफ्त हल्की नहीं हुई थी। वो एक ही बाजू उसके गिर्द लपेटे ऐसे खड़ा था कि जोहल की पुश्त उसके सीने से लगी थी और उसका हाथ जोहल की गर्दन के गिर्द लिपटा था। कभी क्यों छोड़ कर गई थी तुम मुझे? इतना कच्चा एतबार था मुझ पर? उसके जज्बात से आ रही लहजे की तपिश जोहल को उसके कान के करीब महसूस हुई थी। वो पिघल रही थी। वो दोनों ही अब कदरे साइड पर थे, मगर अहमद की नज़रों से बच नहीं सके थे। जानती भी हो कितना तकलीफ दे था ये हिज्र, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम चाहिए हो मुझे। कहते कहते इससे पहले कि वो उसकी तरफ झुकता, चटाक की आवाज़ गूंजी थी। शहरियान बेयकीनी से 2 कदम पीछे हुआ। वहीं अहमद के चेहरे पर खुशगवार तासुरात उभर कर बाहर आए थे और वो पलट गया था। मैंने कहा था ना, तुम्हारी जोहल मर गई। मेरे करीब होने की कोशिश भी मत करना शहरियान शाह। वो एक लम्हे में अपने जनूनी खोल में आता एक झटके से उसे दीवार से लगा गया। मुझे मजबूर मत करो, मैं नरमी से पेश आ रहा हूँ, वरना जबरदस्ती करने पर आया तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। गुस्से से धाड़ा था वो, जबकि उसकी धाड़ और शिद्दत से वो कांप कर रह गई थी। शहरियान। काफी लम्हों के बाद बमुश्किल उसकी आवाज के साथ आंखों से चंद कतरे भी टूट कर निकले। काफी लम्हों बाद उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता वो उसे देखे बिना बाहर निकल गया, जबकि उसके जाते ही जोहल ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सद शुक्र कि कोई उस जानिब मुतवज्जो नहीं था। कुछ देर तक ऐसे ही दरवाजे को देखते देखते वो वहीं बैठती चली गई। आंसू थे जो आंखों से किसी दरिया की तरह बहते जा रहे थे। आंसू थे कि आंखों से किसी दरिया की तरह बहते जा रहे थे। उसे दुख किस बात का था? उस पर हाथ उठाने का, उसका जालमाना लम्स महसूस करने का, या फिर उसके मुंह मोड़कर चले जाने का? हॉल से निकलते ही वो रैश ड्राइविंग करता अपने अपार्टमेंट पहुंचा। कुछ ही पल में उसने उस अपार्टमेंट की हर चीज़ तोड़ फोड़ कर रख दी थी। सर प्लीज़, आपका हाथ पहले ही जख्मी है, चोट लग जाएगी। सीनियर गार्ड आगे बढ़कर बोला, शट अप, गेट आउट। बट सर, आई सेड गेट आउट। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे रोकने की। कुछ देर मजीद गुजरी थी जब कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तुम लोगों को समझ नहीं आती? बाकी के अल्फाज सामने खड़े उस शख्स को देखकर मुंह में ही रह गए थे। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? साहिल उसके सर पर खड़ा सख्ती से बोला। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, जा यहाँ से तू। क्यों जाऊँ मैं? खुद को देखा है? कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई माफिया लीडर है, इतना हारा हुआ सिर्फ एक लड़की के पीछे। साहिल अफसोस से सर झटकता सामने रखी कुर्सी पर जा बैठा उसके। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, बीवी है मेरी, जुनून है मेरा। वो कैसे किसी और के लिए मुझे छोड़ सकती है? तू इतना मत सोच शाह, सब ठीक हो जाएगा, मिनसा समझाएगी उसे। व्हाट? मिनसा भी यही है?
हाँ, डिलीवरी के लिए हम कनाडा आए थे। उसके बाद फिर उसने ज़िद की कि कुछ अरसा और यहाँ रह ले। मेरा तो काम है, तू जानता है, कभी इधर तो कभी उधर, इसलिए मैं मान गया। उसने तफसील बताई, जबकि इन सब बातों में शहरियान का जहन सिर्फ एक चीज़ पर अटका। इसका मतलब है वो अकेली नहीं है, मिन्सा भी उसके साथ इस सब में शामिल है। उसने बेयकीनी से साहिल को देखा जो नज़रें झुका गया। मुझे भी आज पता लगा, तुम्हारे गार्ड्स की कॉल आई थी और जब मैं परेशान होकर निकलने लगा तो दरवाजे पर मुझे जोहल नज़र आई। इसका मतलब वो अभी तुम्हारे घर होगी। चल उठ। उसका सुनते ही वो तेज़ी से उठा था। बट शट अप, तूने आना है या मैं जाऊं? याद रख, एड्रेस सिर्फ मुझे पता है, साहिल शरारत से कहता उसके पीछे भागा था। मेरे लिए पता लगाना मुश्किल नहीं है। शहरियार के जवाब पर सब गार्ड्स ने अपनी हंसी जब्त की थी। उनका बॉस कभी छोटा बच्चा लगता था उनको, तो कभी एक शेर जैसा। समझना कम से कम उनके बस से तो बाहर था उसे। मैं घर जा रही हूँ, साहिल भाई ने मुझे देख लिया है, वो आकर कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। वो कब से ऐसे ही चक्कर काट रही थी। तो दे देना जवाब। नहीं दे सकती, क्या जवाब दूंगी मैं? तुम समझी हो मुझे आज तक जो वो समझेंगे? हाँ, तो तुम मेरी समझ से वाकई बाहर हो। किसने कहा था शेर को छेड़ने को? साहिल उन्हीं के पास गए हैं, गार्ड की कॉल आई थी, पूरे घर का हशर नशर कर चुके हैं, शहरियान भाई। मिन्सा ने उसे डराने की कोशिश की। अगर वो शेर है तो मैं भी शेरनी हूँ, डरती नहीं हूँ उससे। कल देखना, ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि याद रखेगा। अभी तो लगता है उन्होंने तुम्हें मज़ा चखाया है जब भी यहाँ आई हो। यू नो वॉट, भाड़ में जाओ तुम, गुस्से से कहती वो दरवाजे की तरफ बढ़ी जब मिन्सा की बात ने उसके कदम जकड़े। आज यहीं रुक जाओ, अगर ऐसे जाओगी तो साहिल को भी शक होगा और उन दोनों को तुम्हारे अपार्टमेंट का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे आराम करना है। उसका अंदाज खासा थका थका सा था। रुको 2 मिनट, मैं आई, मिन्सा उसे कहती किचन की तरफ बढ़ी जबकि वो वहीं सोफे पर ढह सी गई। इतना कच्चा यकीन था तुम्हारा? उसके अल्फाज जहन में गूंजे। अफसोस, तुमने आज तक मेरे जाने की दुरुस्त वजह ढूंढी ही नहीं, तल्खी से कहते वो उठी जब मिन्सा हाथ में एक कप लिए सामने से उसे आती दिखाई दी। ये लो दूध पियो और जाकर सो जा। उसके अंदाज पर जोहल मुतमईन सा मुस्कुराई। उनकी दोस्ती थी ही ऐसी। इस 1 साल में उन्होंने आप से तुम और फिर खास तक का सफ़र तय कर लिया था। कुछ देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपने रूम में दाखिल हुई। कमरा अंधेरे में डूबा था। उसने लाइट जलाना मुनासिब नहीं समझा। साहिल की गैर मौजूदगी में वो अक्सर ही इस रूम में रहा करती थी। यही वजह थी कि उसके चंद कपड़े भी यहाँ मौजूद थे। अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर उसने वॉशरूम का रुख किया। कुछ ही देर में फ्रेश सी मैरून स्लीवलेस स्लीपिंग सूट में बाहर आई थी वो। शीशे के सामने जाकर एक नज़र खुद पर डाली। जब उसका चेहरा आंखों के सामने लहराया, बेसाख्ता उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जो उसने उस पर उठाया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। अंधेरे में डूबे कमरे में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया था। कौन है? उसने तेजी से स्विच बोर्ड पर हाथ मारा था जिससे सारा कमरा रोशनी में नहा गया था। वो उसे बिल्कुल सामने बेड पर आंखें मूंदे नजर आया था लेटा हुआ, जबकि वो खुद गुस्से और हैरत से सुर्ख होती। उसके सर पर पहुंचती उसका पूरा बाजू झंझोड़ गई थी। ए उठो यहाँ से, वो उसका बाजू थामे चिल्लाई थी। क्या कर रही हो? डिस्टर्ब मत करो। खासा ढिठाई का मुजाहिरा करते वो अपना बाजू छुड़वा चुका था। क्या बकवास है, मेरे रूम में आते हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जोहल ने उसका फिर से बाजू थामा था। मैंने कभी कहा मेरे रूम में क्यों आई हो? इसलिए मुझे सोने दो। ओ अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे, ताने दोगे तुम मुझे? खुद लेकर गए थे अपने रूम में तुम मुझे, जानबूझकर नहीं आई थी मैं। अब उठो यहाँ से। अब की बार उसने बाकायदा उसके बाजू पर नाखून चबोए थे, जबकि अपनी इस हरकत पर वो उसे मौका दे गई थी और दूसरे ही लम्हे वो उसे बेड पर खींच चुका था। क्या है, समझ नहीं आ रहा? सोना है? वो उसे अपनी सुर्ख आंखें उस पर टिका कर बोला था। तो अपने रूम में जाकर सो, यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या मसला है? मेरे आने से तुम्हें क्या मसला है? मैं अपनी बहन के घर आया हूँ। ओके फाइन, मैं ही चली जाती हूँ। उसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही। मसला क्या है तुम्हारा? वो इस तरह बोला गोया हर चीज़ से नावाकिफ हो। तुम ही हो मेरा मसला। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी जिस पर वो काफ़ी लम्हे उसे देखता रहा और जब बोला तो उसकी बात से जोल सरता पैर सुर्ख हुई। लेकिन तुम्हारी ड्रेसिंग तो ये नहीं कह रही। वो उसके कपड़ों पर चोट कर गया जबकि वो सुर्ख चेहरा लिए फिर पीछे हुई थी और चिल्लाई, शट अप, तुम्हारे सामने रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मरना है? शहरियार एकदम संजीदा हुआ। हाँ,
और अगले ही लम्हे वो उसे बाजुओं में उठाए बाहर आया और उसे रीलिंग के पास उतार कर रीलिंग पर झुका गया। मरो, व्हाट द, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऊपर खींचो मुझे। वो उसका हाथ थामे बुरी तरह कांपी। तुमने मरना था ना, तो मरो अब। उसने अपनी गिरफ्त थोड़ी ढीली की थी। क्या चाहते हो? उसका अंदाज खासा हारा हुआ था। तुम्हें ऊपर खींचो मुझे, गिर जाऊंगी मैं। जब तक मेरी गिरफ्त में हो नहीं गिरोगी। तुम मुझे ऊपर खींचो प्लीज। ना चाहते हुए भी उसे हाइट फोबिया हुआ। आंखों से आंसू टपकना शुरू हुए। मैं नहीं जानता, मैं तो जोल को जानता था। लॉयनेस क्वीन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज शाह, पहले कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हाँ मुझे, नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। सुना तुमने? उसके लफ्जों पर शहरियान की गिरफ्त ढीली पड़ी। तुम्हें है? नहीं है, बेशक मार दो। अब के गिरफ्त उसने ढीली की थी। इससे पहले कि वो गिरती, शहरियान ने एक झटके से उसे ऊपर की जानिब खींचा था। तुम्हें है, बोल लो जितना झूठ बोलना है, लेकिन लौट कर मेरे ही पास आओगी। वो उससे 2 इंच के फासले पर था। जब जोहल ने आगे बढ़कर ये फासला भी खत्म कर दिया। तुम्हारी खुशफहमी है ये, उसे कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ी उसे जोरदार चक्कर आया और उसे गिरने से फिर थाम लिया था शहरियान ने। बेबी गर्ल, उसे बाजुओं में भरे वो रूम में लाया और बेड पर लेटाए खुद भी वहीं सो गया। मुसलसल बजते फ़ोन से उसकी आंख खुली थी। स्क्रीन पर अहमद का नाम देखकर वो अटेंड कर गई। गुड मॉर्निंग माय लव। दूसरी तरफ से अहमद की खुशगवार आवाज़ गूंजी। मॉर्निंग। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तुम बताओ, सारे इंतजामात हो गए हैं ना आज के? हाँ हो गए, सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है, जल्दी आ जाओ। ओके बाय। कॉल कट करके उसे किसी चीज़ का एहसास हुआ अपने साथ। बेसाख्ता उसने नज़र घुमाकर देखा जहाँ वो उसके बिल्कुल साथ लेटा हुआ, एक हाथ का उसके गिर्द हिसार बनाए सोया हुआ था। व्हाट, सीरियसली शहरियान शाह? अना कहाँ गई तुम्हारी? एहतियात से उसका बाजू अपने ऊपर से हटाती वो वॉशरूम में बंद हुई। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश सी बाहर आई। वो हनूज उसे सोता दिखाई दिया। सो लो जितना सोना है। आज जो सरप्राइज तुम्हें मिलने वाला है ना, उसके बाद शायद तुम सो ना सको फिर।